شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ آج اس کا 16واں قتل تھا۔ شہر میں ڈر اور خوف کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اب لوگ رات تو کیا دن میں بھی باہر نکلنے سے ڈرنے لگے۔ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی ایک وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ سیم کے پہلے قتل نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے جب اس نے ایک مشہور سیستان کے نوجوان اور اکلوتے بیٹے کو قتل کیا۔ اس کی لاش کو بہت بے دردی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کیا، سر کو تن سے جدا کر کے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا، دھڑ اور دونوں بازوؤں کو ایک چوک میں لگ کر کے لٹکا کر اسی کے خون کے ساتھ بہت واضح الفاظ میں قریبی دیوار پر لکھ دیا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمام واقعات میں ایک بات مشترک تھی، قاتل ہر مرنے والے کا دل نکال کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ پولیس قاتل کو پکڑنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ میڈیا نے اس مسئلے کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ قاتل کا کوئی چھوٹا موٹا سراغ تک نہیں مل رہا تھا۔ ڈر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی اس قاتل کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں بات کرنے سے خوفزدہ تھے کہ کہیں اگلا نمبر ان کا نہ ہو۔ پچھلے قتل کو 2 دن نہیں گزرے تھے کہ سیم دوبارہ اپنے اگلے شکار کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی داڑھی، لمبے بال، چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان اور خود اعتمادی اور بڑے بڑے بوٹ پہنے سیم ایک میٹرو بس میں داخل ہوا جس میں 15 سے 20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنے آنے والے اسٹاپ پہ اترتا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میٹرو نے اپنے آخری اسٹاپ کا اعلان کیا۔ اب بس میں صرف ایک ہی بندہ باقی رہ گیا تھا۔ دیکھنے سے یہ کوئی ڈاکٹر لگتا تھا جو شاید رات کی ڈیوٹی کے بعد واپس گھر جا رہا تھا۔ جیسی گاڑی رکی وہ نیچے اترا اور ایک سڑک کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک ایک تنگ اور سنسان گلی کی جانب مڑ گئی۔ دور تک پھیلا ہوا اندھیرا اور ہوا کی ہلکی ہلکی سنسناہٹ کسی بھی عام انسان کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ چلتے چلتے اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حد نگاہ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ تیز قدموں کے ساتھ چل دیا۔ اب اس کو صاف صاف پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے یکدم پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب وہ بہت خوفزدہ ہو گیا اور جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر جانے کے لیے بڑبڑاہٹ میں واپس مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی زوردار چیخ نکل گئی۔ سامنے کوئی دراز قد شخص کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے بھاگتا یا کچھ کرتا، کوئی بھاری چیز بہت زور سے اس کے سر پر لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لگے لوہے سے جڑی زنجیروں کے ساتھ بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ گرمی کے باوجود یہ جگہ بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے سر سے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا خون بہہ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنی ٹانگوں کے قریب کوئی چیز محسوس ہوئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ بڑی مشکل سے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ فرش خون سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف انسانی اعضاء کے کٹے ہوئے مختلف حصے پڑے تھے جن پر کیڑے مکوڑے اور مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ اس مشہور درندے صرف قاتل کی گرفت میں آ چکا ہے اور اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اسی دوران اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ سامنے بلب کی روشنی کے پیچھے سے کوئی قد آور شخص نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی داڑھی۔ سیم کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بندہ بہت ہی بے رحمی سے لوگوں کا قتل کر چکا ہے اور یہ آج اس کا 16واں قتل ہے۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے پڑے ہیں، وہ لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بندھے ہوئے شخص نے بے بسی کے عالم میں گڑگڑانا شروع کر دیا کہ شاید قاتل اس پر رحم کھا لے۔ سیم اب اس کے بالکل پیچھے آ چکا تھا۔ وہ شخص مسلسل گڑبڑا کر اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اچانک اس شخص کی ایک دل خراش چیخ نکلی جو شاید ارد گرد کے تمام انسانوں کو سنائی دیتی اگر وہ کسی کھلی جگہ پر بندھا ہوتا۔ اس کے دائیں بازو پر اتنی شدت سے ضرب لگائی گئی کہ اس کا بازو کٹ کر دھڑ سے الگ ہو کر زنجیروں کے ساتھ دائیں بائیں لٹکنے لگا اور خون فواروں کی شکل میں تیزی سے کٹے ہوئے بازو سے نکلنے لگا۔ اتنا بھیانک منظر اور دل دوست چیخیں تھی کہ کسی کا بھی دل دہل جائے، لیکن اس کے برعکس قاتل مسکرا رہا تھا۔
हथियार को फर्श पर घसीटते हुए सैम अब इस शख्स के सामने आ चुका था जो शदीद तकलीफ के बायस अब तकरीबन नीम बेहोशी के आलम में था। इसकी हालत देखकर सैम के चेहरे पर एक अजीब किस्म का सुकून था। वो मुस्कुराई जा रहा था। मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक सैम ने दोबारा भरपूर ताकत के साथ इस शख्स की बाईं टांग पर हमला किया और उसकी टांग धड़ से अलग होकर हथियार के नुकीले दारों में फंस गई। लेकिन इस बार इस शख्स की चीख नहीं निकली बल्कि इसकी रूह निकल गई। सैम अपने चेहरे से खून साफ करते हुए करीब पड़ी ड्रिल मशीन और बिजली से चलने वाला आरा उठाया। इससे पहले कि सैम कुछ करता, दरवाजा जोर जोर से बजना शुरू हो गया। वादी से बहुत दूर एक जंगल के करीब जेर जमीन में यह बहुत बड़ा तहखाना था जिसकी इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। राश न होने की वजह से हर तरफ मकड़ी के जाले बने हुए थे। मशहूर था कि यह जगह बहुत असेब ज़दा है और इस जंगल से रोजाना अजीबो गरीब किस्म की चीखों की आवाज सुनाई देती है, तो लोगों के अंदर इस जगह के हवाले से वैसे भी बहुत खौफ था। इसलिए यह जगह सैम के लिए महफूज तरीन जगह थी। एक दफा फिर जोरदार तरीके से दरवाजा बजना शुरू हो गया। सैम ने अपना मखसूस हथियार उठाया और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते के साथ ही अजीब ड्रोनी फिल्मों जैसी चीज की आवाज आई और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके खून से लथपथ हाथों में किसी जानवर का कटा हुआ सर था। अभी भी इससे ताजा खून रस रहा था। आंखें अंदर को धसी हुई, पिचके हुए गाल दांत बाहर को निकले हुए, बड़े बड़े नाखून कपड़े खून से भरे हुए इस आने वाले शख्स में इतनी वहशत थी कि इसे देखकर नहीं लगता था कि वो इंसान है, लेकिन वो इंसान था और सैम का छोटा भाई दावर था। कहाँ थे तुम? पता है कितना परेशान था मैं तुम्हारे बारे में। आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर बाहर मत निकलना। भाई मैं जंगल में गया था। दावर ने हाथ में पकड़े हुए जानवर के सर को देखते हुए कहा, अच्छा इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। सैम ने सामने लटकी हुई लाश दावर को दिखाते हुए कहा। लाश के देखते ही दावर बच्चों की तरह खुशी के मारे उछलने लगा। आओ तुम्हें तुम्हारा हिस्सा निकाल कर दूं। ये कहते हुए सैम ने लाश के करीब पड़े एक संदूक में से एक बहुत बारीक और तेजदार टोका उठाया और बहुत महारत के साथ 1 मिनट से भी कम वक्फे में इस लटकती हुई लाश के चीर फाड़ कर दिल निकाल कर दावर को पकड़ा दिया। जिससे दावर इतने मजे से खाना शुरू हो गया जैसे दिल ना हो बल्कि कोई स्पाइसी सा पिज्जा हो। इतनी देर में सैम ने इस लाश की गर्दन को दर्द से लग करते हुए एक शापर में डाला, हाथ और टांग को दूसरे शापर में डाला। दावर को तहखाने के अंदर रहने का कहकर सैम इन शापरों को एक बोरी में डालकर बाहर निकल गया। बाहर मुकम्मल तारीखी थी। जंगल में फैला ये अंधेरा और हवा से हिलते दरख्तों की पत्तों की सरसराहट। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस वीराने और जंगल का हजारों सालों का पुराना याराना हो। सैम को चलते चलते तकरीबन 1 घंटा हो गया था। अब वो जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके में पहुंच चुका था। रात का वक्त होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। दुकानें बंद थी। आधे घंटे बाद सैम इसी वीरानी और सुनसान गली में पहुंच चुका था जहां से गुज़िश्ता शब इसने एक जिंदा सलामत शख्स को अगवा किया था। वो एक घर के सामने पहुंचकर सैम ने जेब से एक बिल्कुल पतली मगर मजबूत लोहे की तार निकाली और चंद सेकंड के अंदर ही बगैर आवाज किए दरवाजे को इस तार की मदद से खोलकर अंदर दाखिल हो गया। 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में दबे पांव दाखिल हुआ जहां पर एक औरत के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे सोए हुए थे। ये शायद इसी डॉक्टर की फैमिली थी। थोड़ी देर सैम इन बच्चों को घूरता रहा, फिर एक बच्चे के बिल्कुल पास गया जिसकी उम्र शायद 8-9 साल थी। जेब से एक छोटा खूबसूरत सा चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर रखते हुए और सर पर मुस्कुराते हुए हाथ फेरना शुरू कर दिया और चाकू वापस जेब में डालकर इसी डॉक्टर का कटा हुआ सर बैठ के बिल्कुल सामने बड़े मेज पर रखते हुए बगैर कोई आवाज किए बाहर निकल गया। दूसरी सुबह 6 बजे के करीब इसी छोटे बच्चे की जाग सबसे पहले हुई जिसकी गर्दन पर रात को सैम ने चाकू रखा था। सामने मेज पर पड़ा अपने बाप का कटा हुआ खून आलूद सर देखकर इस बच्चे की चीख निकल गई जिसके शोर की वजह से पास सोई हुई इसकी मां जाग पड़ी और जब इसने अपने शोर का कटा हुआ सर सामने पड़ा देखा तो घर के अंदर चीखों पुकार शुरू हो गई और थोड़ी देर में वो घर क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। वाक़ई के इल्म पड़ते ही करीबी हमसायों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच चुकी थी और आधे घंटे बाद मीडिया भी पहुंच चुकी थी। अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि पुलिस को इत्तला मिली
कि एक चौक के अंदर एक धड़ मिला है जिसकी एक टांग कटी हुई और एक हाथ कटा हुआ है, और वहां पर वही अल्फाज लिखे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा इस वाक्य में कोई कसूर नहीं था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये सब साजिश चल रही है। मैं अपने बच्चों के सर की कसम खाकर कहता हूं मैं बेकसूर हूं। सामने पड़े कुर्सी पर बहुत बेरहमी से खरदार दारों से बंधा हुआ एक शख्स बच्चों की तरह बलक बलक कर रोते हुए कह रहा था, जो इतनी दरिंदगी से बंधा हुआ था कि आधी तारें इसके जिस्म के तमाम हिस्सों में धंस चुकी थी। खून पूरे जिस्म से कतरा कतरा बहकर नीचे पड़े कारपेट में जज़ब हो रहा था। कमरा बहुत साफ सुथरा था। कमरे में रखा टीवी चल रहा था। हल्का हल्का ट्रैफिक का शोर भी आ रहा था। ये कोई फ्लैट का कमरा लगता था जो वादी वाले इलाके में था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम बॉस से पूछ लो, बल्कि इन्हें सब कुछ पता है, बल्कि इन्होंने ये सब कुछ कराया था। इस शख्स ने अपनी बड़बड़ाहट को काबू करते हुए तकरीबन एक ही सांस में कहा। ये सुनते ही सैम अपनी जगह से उठा और किचन की तरफ चला गया। जब वापस कमरे में आया तो उसके हाथ में पत्थर का बना हुआ एक बड़ा बर्तन था जिसमें पिघला हुआ लोहा आग उबल रहा था। सैम वो बोलता हुआ बर्तन उठाई इस बंधे हुए शख्स की जानब चल पड़ा। अपनी मौत को अपनी तरफ आते देखकर वह शख्स दौरों कतार रोते हुए बहुत जोर जोर से चीखना शुरू हो गया। सैम मुकम्मल ताकत से वो बर्तन उठाकर इस शख्स के सर के ऊपर ले गया। बर्तन अंडेलने ही लगा था कि कमरे में रखे टीवी पर सैम के लिए हैरान और परेशान कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गई। नाजरीन, आपको एक बहुत बड़ी खला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। अभी पुलिस ने सफाक कातिल के खानदान में से एक फर्द का पता चला लिया है, जिसे अभी थोड़ी देर तक मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। अब सैम के कानों में टीवी की आवाज बिल्कुल कम हो गई। वो हैरान था कि पुलिस तहखाने तक पहुंची कैसे। सैम को दावर की फिक्र होने लगी। इससे पहले कि सैम अपने भाई के बारे में मजीद कुछ सोचता, अचानक टीवी की आवाज एक मरतबा फिर बढ़ी और अब वाली खबर सुनकर सैम के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। नाजरीन, पुलिस ने इस दरिंदा सिर्फ कातिल की वालदा को ढूंढ निकाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कातिल का नाम सैम बताया जा रहा है, जिसकी वालदा को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और अभी 5 मिनट में इस खातून को पेश किया जाएगा। सैम बर्तन हाथ में उठाई हक्का पक्का खड़ा ये सुन रहा था। इस सफाक कातिल का नाम सैम बताया जा रहा है, जिसकी वालदा को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। बार बार टीवी के ऊपर यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सैम हैरान होकर टीवी की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन इसका जहन कहीं और था। इसी दौरान इसकी वालदा को टीवी पर पेश किया गया। वो एक खुद शक्ल औरत थी, उम्र उसकी 40 से ऊपर थी। सैम बेटा, ये मैं हूं, तुम्हारी माँ, इस खातून ने बोलना शुरू किया। बेटा, वो एक बहुत बुरा वक्त था जो गुजर गया। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं। खुदा के लिए कत्लो गारत बंद करो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें मेरा वास्ता है। इन अल्फाजों ने सैम के जहन को मुफ कर दिया और उसके सफाक दरिंदे की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। माँ जिंदा है, सैम जेरे लब बड़बड़ाया और उसके जहन में एक मरतबा फिर माजी के दरीचों से बेहद तकलीफ दे यादें एक फिल्म की तरह चलना शुरू हो गई। 25 साल पहले सैम ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। सैम बड़ा था और दावर छोटा। सैम अपने बाप का बहुत लाडला था। इसकी जहानत इतनी ज्यादा थी, वो उससे बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चों को मात दे देता, बाज़-औक़ात उस्ताज़ा को भी लाजवाब कर देता था। यानी वो अपनी उम्र से बहुत बड़ा था। सैम के वालिद अद्वियात बनाने वाली एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनी का मालिक था। सैम के वालिदैन की लव मैरिज थी, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही दोनों के दरमियान झगड़े का रोज मामूल बन गया और इन सब ने सैम की तबीयत के ऊपर बहुत बुरा असर डाला। बात झगड़ों तक रहती तो ठीक थी, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पर बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि सैम के वालिद अपनी बीवी पर हाथ उठाना शुरू हो गए। एक दिन सैम अपने बाप के कमरे के पास से गुजरा तो अंदर रोज की तरह झगड़ा चल रहा था और उसका बाप अपनी बीवी को कह रहा था कि यह जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। सोचो, बच्चों को तुम्हारी इन बातों को पता चला तो उन पर क्या असर पड़ेगा और उनके दिल में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हारा जो भी चक्कर इसके साथ चल रहा है इसे खत्म करो। और ये मैं फकत बच्चों की खातिर कर रहा हूं, वरना तुम्हें कब का तलाक देकर फारग कर देता। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग जारी थी, जिसमें कंपनी के तमाम शेयर होल्डर्स शरीक थे। सर, अगर हम इस डील के मुताबिक मतलूबा बीमारी की दवाई बनाते हैं तो हमें चंद दिनों के अंदर अंदर अरबों रुपए का फायदा होगा। बोर्ड का सबसे सीनियर मेंबर अरमान बोला।
अरमान साहब, आप मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि मैं पैसों की खातिर इंसानी ज़िंदगियों से खेलूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। सालों से हमारा और हमारी कंपनी का जो एक मकाम बन चुका है, मैं किसी सूरत इसको धो पर नहीं लगाऊंगा। सैम के वालिद अपनी सीट से उठते हुए बोले, सर, मेरी दूसरी कंपनी से डील हो चुकी है। वो अपने प्रोडक्ट्स में इस बीमारी फैलाने वाली वायरस की मिलावट कर चुके हैं। अगर हम ये डील कैंसिल करते हैं तो दोनों कंपनीज को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अरमान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ा किया और बाकी तमाम शेयर होल्डर भी पैसों की लालच में अरमान साहब के साथ मिले हुए थे। लेकिन चूंकि कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर सैम के वालिद के थे, तो आखिरी फैसला भी इन्हीं का होना था, जिसे उन्होंने यकसर रद्द कर दिया। मदिया, हमारे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना सारी ज़िंदगी हम ऐसे चोरों की तरह मिलते रहेंगे और रेशल तुम पर तशद्दुद करता रहेगा, अरमान ने सैम की वालदा से कहा। लेकिन अरमान, लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने सब कुछ सोच लिया है। कल ही मेरे आदमी ये काम सर अंजाम देंगे और तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे। तुम्हें इनके हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरमान के जहन में कोई गनौना मंसूबा चल रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब अचानक घर के अंदर शोर शराबा शुरू हो गया। इससे पहले कि सैम कुछ समझता, इसके कमरे का दरवाज़ा एकदम ज़ोर से खुला और 3 लोग चेहरे पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक के ताने कमरे में दाखिल हुए और सैम को उठाकर नीचे ले आए, जहाँ सैम का वालिद रेशल को दोनों नकाब पोशों ने पकड़कर घुटनों के बल नीचे बिठाया हुआ था। दावर ये सारा मंजर देखकर रोए जा रहा था और सामने अरमान खड़ा था। सर, अगर आप मेरी बात मान लेते तो शायद आपको ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन अफसोस, आप इन तमाम हालात के जिम्मेदार खुद हैं। मुझे आज इंतहाई अफसोस के साथ आपको यूं अलविदा करना पड़ रहा है। ये कहकर अरमान ने बच्चों के सामने इनके बाप को गोलियों से छलनी कर दिया और अब वहां खून से लथपथ एक बाप की लाश पड़ी थी। दावर ये मंजर देखकर बेहोश हो गया और सैम ये सब खड़ा देखकर रो रहा था। लाश को ठिकाने लगाकर फौरन बंगले को आग लगा दो, एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए, अरमान ने अपने लोगों को हुक्म दिया। और देखते ही देखते चंद लम्हे पहले तक जो एक घर था, अब आग के शोलों का मस्कन बन चुका था। अरमान ने इस तमाम वाक़े को बहुत महारत के साथ एक हादसा ज़हर कराया, जिसमें रेशल की तमाम फैमिली जलकर राख हो गई। और यूं अरमान रेशल की मौत के बाद कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स होने की वजह से कंपनी का मालिक बन गया और कंपनी को अपनी मर्जी के मुताबिक पैसों की लालच में इंसानी जानों से खेलकर चलाने लगा। पिछले 3 सालों से सैम और दावर को शहर से बहुत दूर एक वीरान सी जगह पर एक वीरान से घर में रखा जा रहा था। दोनों को जिंदा रखने की वैध वजह मदिया थी, जिससे अरमान शदीद मोहब्बत करता था। सैम और दावर को रोजाना की बुनियाद पर टार्चर किया जाता। दावर तो इसी दिन ही अपने होश खो बैठा था, जिस दिन इसने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को कत्ल होते देखा। लेकिन सैम अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में जलकर खुद को कुंदन बना चुका था और ये तशद्दुद अब इस पर बेअसर थी। बहुत दफ़ा भागने की नाकाम कोशिश के बाद आज फिर सैम ने फरार होने का मुकम्मल मंसूबा बनाया हुआ था। रात को 10 बजे के बाद दरवाज़ा को बंद करके सारे मुलाजिम सो जाते थे। तकरीबन 12 बजे सैम उठा, सामने लगी बिजली के बोर्ड को एक कील की मदद से खोला और उसके अंदर बिजली की तार को बड़ी चबकदस्ती के साथ आराम आराम से निकाला। इस बारीक पतली तार को एक दूसरे के साथ जोड़ कर सैम ने एक बहुत बारीक पतली मगर मजबूत तार बनाई। सामने लोहे के गेट के बाहर लगे बड़े से ताले को बगैर कोई आवाज किए चंद मिनटों के अंदर इस तार की मदद से खोलकर दावर को कमरे के अंदर रहने का कहकर सैम कमरे से बाहर निकल गया। दबे पांव सैम तीसरे कमरे की तरफ गया, जहां पर तीनों पहरा देने वाले मुलाजिम सोए हुए थे और करीब इनके बंदूक पड़े थे। सैम ने आस्था से एक बंदूक उठाई और तीनों को गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज सुनकर दावर भी कमरे में आ गया। सैम ने घर में मौजूद एक कुल्हाड़े से 3 लोगों की गर्दन को बहुत बेदर्दी से काटकर और उनके खून से सामने दीवार पर बड़े बड़े लफ्जों में वही अल्फाज लिखे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और दावर को लेकर इस जगह से गायब हो गया। सैम अपने माजी के इन दर्दनाक ख्यालों की दुनिया से इस वक्त एक दचके के साथ वापस आया जब टीवी पर मदिया के साथ इसने अरमान को देखा। सैम इतने अरसे तक अपनी माँ को भी मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन अब सारा खेल इसकी समझ में आ चुका था कि इसकी माँ ने अरमान के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। ये दचका लगते ही सैम ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया और टीवी को उठाकर दूर फेंका। जेब से चाकू निकाली और इसके बंधे हुए शख्स पर अन्नादान चाकू से वार करना शुरू कर दिया। चाकू के वार इस बेदर्दी के साथ किए गए थे कि इसका मुंह एक खुलनाक गड्ढा बन चुका था।
इसके जिस्म के अंदर तमाम अज़ा ज़हर थे। जहाँ मजीद वहशियाना वार के सैम ने इस शख्स की अंतड़ियाँ तक बाहर निकाल दी थीं और दिल को निकाल कर जंगल में अपने तहखाने की तरफ पहुंच गया। अरमान के घर पर सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम थे, जहाँ पर घुसना तकरीबन नामुमकिन था। आधी रात को सैम अरमान के बंगले के पिछली तरफ पहुंच चुका था। बहुत बड़ा बंगला था इसका, जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें थीं। हर तरफ पहरेदार मौजूद थे। अरमान को अपना खतरा भी लायक हो चुका था कि अगली बारी इसकी भी हो सकती थी। रस्सी की मदद से सैम दीवार पर चढ़ा, जहां बिल्कुल सामने एक गार्ड खड़ा था। एक तरफ पहरा देकर जब वो दूसरी तरफ गया तो सैम जल्दी जल्दी इस दीवार से बंगले के अंदर नीचे उतरा और सामने किसी दरख्त की ओट में छुप गया। जब गार्ड पहरा देकर दोबारा दूसरी तरफ गया तो सैम बगैर आवाज किए बहुत तेजी के साथ बंगले की पिछली तरफ भागा, जहां एक बहुत बड़ा पाइप ऊपर छत की तरफ जाता था। इस पाइप की मदद से सैम चंद मिनटों में छत पर पहुंच चुका था, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में गन लिए कुर्सी के ऊपर तकरीबन सो रहा था। सैम आस्ता से इसके पीछे गया और एक तेजदार ब्लेड से इसकी आधी गर्दन काट डाली। गर्दन से खून ऐसे बहना शुरू हो गया जैसे पानी उबल रहा हो। सामने लगे दरवाजे को खोलकर सैम अंदर की जानब दाखिल हो चुका था। अंदर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं थे। सैम अब तीसरे कमरे को खोलकर चेक कर चुका था, लेकिन अरमान वहां मौजूद नहीं था। अचानक सामने के कमरे का दरवाजा खुला। सैम जल्दी जल्दी छुप गया। कमरे से कोई निकलकर नीचे की जानब चल दिया। ये सैम की वालदा थी। सैम दबे पांव इस कमरे में दाखिल हुआ, जहां सामने बेड पर अरमान सो रहा था। अरमान को देखकर सैम का खून खोल उठा और उसके हाथ में अब इसका वही खास हथियार मौजूद था। सैम आहिस्ता आहिस्ता अरमान की जानब बढ़ा और इसी दौरान पीछे इसकी माँ आ गई। सैम रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। मदिया के कांपते हुए हाथों में पिस्तौल थी। सैम मैं कहती हूँ रुक जाओ, मुझे गोली चलाने पर मजबूर न करो। मदिया आपकी बार चलाई और यह सुनकर अरमान भी जाग गया। जब इसने सैम को यूं अपने सामने खड़ा देखा तो सैम गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सैम आस्था से इसकी जानब बढ़ रहा था। इसी खौफ और बड़बड़ाहट में अरमान ने साथ वाले दराज से जल्दी जल्दी पिस्तौल निकाली और उसी वक्त सैम अरमान के सर पर पहुंच चुका था। पीछे से मदिया मुसलसल चला रही थी। इसी दौरान अरमान ने पिस्तौल जैसी चलाने की कोशिश की। वो बिल्कुल इसी वक्त सैम ने अरमान पर जोरदार हमला किया। तवाज़ुन बरकरार न रख सकने की वजह से अरमान की गोली सैम के बजाय मदिया को लगी। इधर मदिया अरमान से पहले ही सैम पर गोली चला चुकी थी। सामने बेड खून से भर चुका था। मदिया खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़ी थी। सैम को गोली कंधों पर लगी थी और बहुत खून बह रहा था, लेकिन इसे अपनी परवाह नहीं थी। लेकिन अरमान अब तक जिंदा था और सैम ने अब इस पर मुसलसल अपने हथियार से वार करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते अरमान के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। पूरा कमरा इसके छोटे छोटे चीतड़ों से भर चुका था। सैम भी अब जख्म की ताब न लाते हुए फर्श पर गिर चुका था। चंद ही लम्हों में सिक्योरिटी के तमाम लोग अंदर पहुंच चुके थे। वाकई की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मदिया को गोली सीधा सीने पर लगी थी, जिसकी वजह से वो मौके पर मर गई। अरमान की लाश के टुकड़े बोरी में बंद किए गए। सैम जिंदा बच गया, जिसे 2 हफ्ते तक अस्पताल में रखा गया। इसके बाद अदालत में पेश किया गया, जहां पर इसने तमाम जराइम का इकरार किया। सैम को फांसी की सजा दी गई। दाऊद को मेंटल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर वो 2 साल तक इसका इलाज चलता रहा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल बाद अदालत के हुक्म के मुताबिक वो अपने बाप की कंपनी का दोबारा मालिक बन गया, जिसका नाम दावर ने तब्दील करके अपने भाई सैम के नाम पर रख दिया।